महाकुंभ चल रहा है और इस दौरान हम आपको अलग अलग संतों से मुलाकात करवा रहे हैं। आज हमारे साथ जो संत बैठे हुए हैं इनका नाम है सोमेश्वर पुरी महाराज जी हैं और इनका जीवन जब अच्छा खासा चल रहा था लेकिन उसके बाद ये कैसे सन्यास की तरफ आए, ये सब सारी बातें हम इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। Well, we mostly live in present, so there is nothing much to talk about past. Particularly क्या होता है संन्यास लेने से पहले, इसलिए a particular branch में संन्यास has many branches. Juna Khada is one of them. Juna Khada is considered as number one as far as at least Kumbh Mela is concerned. Even otherwise they are number one. That is Kumbh Mela decision, when it should be conducted, what time, what मुहूर्त, कहाँ, कब, कैसा, इधर आने के बाद कौन सा स्नान कब होगा, कौन सा अखाड़े वाले कब, because to avoid confusion, because hundreds of organizations that come, sannyas organization in India, we have so many branches. We have so many branches is, our literature is so vast, the subject is so vast, so ancient. So naturally along the line so many branches, divisions have happened. So to do that, all the decision making is done by Juna Khada. And आपने क्या पूछा था? महाराज जी, हमने कहा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बस। I consider myself fortunate to be one of them, and particularly I am forever indebted. Of course, every Shishya is forever indebted to my Guru Maharaj, Sri 108 हीरापुरी महाराज जी, जो जिनका स्थान, वी कॉल इट गुरुस्थान, जिनका आश्रम जयपुर से 60 किलोमीटर दूर में बड़ा डोगरी कलान बोल के वहाँ पे है. So I am one of his sishyas. He has many sishyas. We also have some of them working abroad also. He is not here. If he is here, I could have introduced him. He is taking care of spreading Guruji's message in Europe. At present he is based in Madrid, Spain, capital of Spain. हमको जो जानकारी मिली कि आप बैंक मैनेजर थे, तो जब आप बैंक मैनेजर थे तो उसके बाद आपने नौकरी छोड़ करके सन्यास की तरफ आप गए, दीक्षा ली सन्यास की, या नौकरी से रिटायर होने के बाद आपने सन्यास की दीक्षा ली? हाँ, तो ये तो I'll take the question as सन्यास का दीक्षा आपने कब ली. मैं ये सब बैंक को बहुत पुराना हो गया. So इसमें हर कोई कुछ ना कुछ किया होगा ना सन्यास से पहले. Very few of them join as children. They are called as Bala Sannyasis. In fact, our Gurudev Bal Sannyasi, he started at the age of 7, 8 or 9, something like that. अभी ऐसा है, we don't consider that we have become sannyasis, we have become that, we have become this. That kind of feeling you will have when you are outside of sannyas, when you have less knowledge. Otherwise, jaisa our philosophy says that there is nothing that you are doing. That the feeling of doing itself is misleading. It's a misconcept. You think I am this body doing, I am doing, it's a misconcept. It's being done by Ishwara's grace. Similarly, हम किसी से पूछते डॉक्टर से, आप डॉक्टर कब बने? आपका मतलब जिस दिन डिग्री मिली उस दिन, या जिस दिन उसने कॉलेज ज्वाइन किया उस दिन, या नहीं तो जिस दिन प्रैक्टिस शुरू किया उस दिन, या नहीं तो उस प्रैक्टिस में 10 साल के बाद बड़ा बना उस दिन. कौन सा दिन बना वो डॉक्टर, आप बताइए मेरे को. He is in the making right from childhood. Right from childhood. As he is born to become that. तो ऐसी सन्यास भी एक योग होता है. किसी बोलेंगे आप पॉलिटिशियन मंत्री कैसे बने, तो इसे उसका हाथ में राजयोग है, तो मंत्री तो राजी है आजकल, वही राजा है. ऐसी सन्यास योग जिसके हाथ में है वो सन्यास बनेगा. वो हम डिसाइड करने से नहीं होता है. डिसाइड करने से कोई सोचेगा मैं सन्यास बनूंगा, it won't happen. Unless it is written, then you will fall in the right mark. वो सही पाथ पे जाएंगे. Otherwise उधर you get misguided, misconfused हुए. Sannyasi is not by dress. Sannyasi is not by the organization he belongs to. Sannyasi is a process of internal maturity towards God.
and his sayings. महाराज जी मेरा फिर वही सवाल है कि आपने नौकरी छोड़ा। अच्छा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट चाहिए, चलो नौकरी। आई हैव रिजाइंड, आई फेल्ट लाइक आई हैव फिनिश्ड माय responsibilities, family responsibilities. Now it is time to go on a pilgrimage. I started as a pilgrimage. On the way, on the path, I became a sannyas. तो एक सवाल और है आपसे कि एक बड़ा ही मतलब विषय ये रहता है कि सन्यास की तरफ कब जाए व्यक्ति। जो बाल्यावस्था से जाते हैं तो लोग उनके ऊपर भी मतलब कई सारे सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं एक उम्र के बाद ही सन्यास। आप नौकरी आपकी चल रही थी, उस दौरान आपने सन्यास की तरफ आप अग्रसर हो गए, सन्यास की दीक्षा ले ली, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सन्यास की उम्र होनी क्या चाहिए? तो हमारा हिसाब कुछ नहीं रहता है, हम हर चीज़ को शास्त्रों के बल के ऊपर, बिकॉज इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड समवेयर, इट मस्ट बी देयर। एंशियंट्स कोई बड़ा महर्षि बोले, हमारा सनातन धर्म है बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, यवन अवस्था। अब वैसे ही सब साथ में भी देर आर उसको बोलते हैं मैरिड लाइफ, देन मैरिड लाइफ के बाद आफ्टर यू आर सेटिस्फाइड एंड डिस्चार्ज योर ड्यूटीज इफ टाइम परमिट्स। नो प्रौढ़ावस्था को इसमें कुछ और बोलते हैं, वानप्रस्थम। वानप्रस्थम इज ही लीव्स द हाउस एंड गोस and tries to be somewhere. That is one person. He is still not sannyas. He is still connected with the family, but he is putting more time into spiritual aspects of philosophy or dharma, whatever dharma he belongs. Because sannyas तो हर धर्म में है। वो वानप्रस्थ के बाद उसको लगा, मतलब वहाँ से इस तरफ आ गया मन, तो sannyas. That's what our scripture says. That is how we should go about. That ends with scripture. But जैसा आपने बोला बचपन से भी है, बीच में भी है, कभी शादी नहीं किया ऐसा लोग है, शादी करके बीच में आ गया ऐसा लोग है, सब लोग है। तो महाराज जी ये पहला महाकुंभ है, कुंभ में आप यहाँ स्नान करने आए, इससे पहले भी आए थे? मैं 4 कुंभ देखा हूँ मेरा संन्यास लाइफ में। तो पहला वाला कुंभ इधर ही 6 साल पहला था, और उसके बाद बीच में कौन सा हरिद्वार एक कुंभ है जहाँ पे बीच में फेल हो गया था। दे हैव स्टार्टेड एंड देन हाफ वे थ्रू बिकॉज ऑफ द कोरोना, so they suspected corona may spread and whatever has happened, it was suspended in the middle, and I think this is the third one. महाराज जी जो भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं या श्रद्धालु हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, क्योंकि हमारे तरफ कहने के लिए बहुत लोग हैं ना। कितना लोग हैं कुंभ में देखे होंगे, कितने सीनियर्स पोजीशन भी रहता है। लाइक वी आल्सो हैव, जैसा आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस में पोजीशन होता है, ये क्लर्क है, ये ऑफिसर है, ये जनरल मैनेजर है, ये है, उसी हिसाब से हमारे में भी है। वी हैव मेनी पोस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा गुरु। आपकी बात सही है महाराज जी, लेकिन बात ये है, अच्छा मेरी तरफ से क्या कह रहे हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब नौकरी करता है, और उसमें भी आप बैंक मैनेजर रहे, नौकरी करता है, तो वो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है और संपत्ति बनाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो उसका यथोचित उपयोग करना चाहता है। वही आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके आप सन्यास की तरफ आ गए हैं, तो हम उसके पीछे का मोटिव जानना चाहते हैं। उसके बारे में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं तो हम वो जानना चाहते हैं। So my experience is बहुत लोग, सबको, हर किसी को हिंदुस्तान में बच्चा से लेके सब जानते हैं, क्योंकि खासकर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, साउथ इंडिया में भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट से उसको रिपीट करवाया जाता है। लाइक रामलीला चलती है 14 दिन के लिए, वो मैं इधर भी देखा है, डन सम तपस्या इन उत्तराखंड, नियर फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, केव्स एंड ऑल, उधर भी देखा। उधर रामलीला रात को होता है तो 7 बजे वो जंगलों से आना पड़ता है, जहाँ ये तेंदुआ, शेर वगैरह डेंजरस एनिमल्स घूमते हैं। माता रानी अपने बच्चों को लेके, ठंड में यही समय होता है, बीन इन्वाइटेड देयर, उधर भी अभी कुंभ इसलिए नहीं जा पाया, नहीं तो वहाँ जाते हैं। तो सभी जानते हैं, मगर
प्रॉब्लम आता है, जानते हुए भी वो परफॉर्म करने के लिए हम सामने नहीं आते हैं, परफॉर्म करने के लिए शर्मा जाते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत जो दिखता है उतना ही परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स आपने जो समझा, बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ, उतना डीप हिंदी नहीं आता है, जो आता है आई विल मैनेज विद इट। तो क्या है, वी नीड मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस than only theories. Everybody has got theories, volumes of theories. अभी और आ रहे हैं। अगर आप स्क्रिप्चरल लिटरेचर कलेक्ट किया तो वो यूनिवर्सिटी लिटरेचर से जो बहुत ज़्यादा उगलेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो अभी शुरू हुए हैं। नालंदा तक्षशिला तक भी हम गए तो भी 150-200 साल, नियर 2 सेंचुरीज हुए होंगे, मगर इनका तो पता नहीं कितना सेंचुरीज है। तो इतना स्क्रिप्चर्स है तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ भी आप थोड़ा मिला आपको, उसको प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एट द मोस्ट दुनिया में मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ दिखाने के लिए काम आता है। जो आप लोग इतना परिश्रम करके ये ठंड में इधर आके अपना धर्म संस्कृति के बारे में, साधुओं का क्या बोलते हैं उनका इंटरव्यू ले रहे, ये सब प्रजा तक पहुंचा रहे हैं, जो नहीं आ पाए, जो बहुत दूर से है, कोई बीमार है, कोई जो नहीं आ पाएंगे, बहुत सारे तो आएंगे कुंभ में, तो दैट वुड बी ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन। एक बार मिस हो गया तो फिर नहीं आएंगे, वो फिर मौका नहीं आएगा लाइफ में। एक बार मिला मुश्किल है, आता ही 12 साल में, उसमें कुछ विशेष दिन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो अपने अपने भाग्य के अनुसार मिलेगा। क्योंकि कोई साधु संत को छोड़ के बाकी लोग अपना घर परिवार छोड़ के 40 दिन यहाँ पे नहीं रह सकते, तो वापस जाएंगे, 2-3 दिन आएंगे। अब आज जो आए उनको आज का स्नाही शान स्पेशल डे, इसका फल मिलेगा। जो बीच में भी है, बीच में भी कुंभ का पर्व में पूरा पीरियड वो ये चलते हैं। सो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, थियरी नोइंग बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत बीइंग, लेट अस बी देयर इंस्टेड ऑफ ऑलवेज नोइंग। अगर आप कुंभ के बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे तो इंटरव्यू कौन लेगा, कोई फायदा नहीं हुआ ना। कि मतलब सोचना नहीं, कर देना है जो मन में है, कर दो जो मन में आया नहीं। हाँ। जो उचित है। इसीलिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी जगह है, सब जगह है गुरु, हर जगह हर सिस्टम आखिर वहीं ले जाता है। हर अलग अलग मार्ग है, बस अलग अलग मार्ग, अलग अलग तरीके हैं। बिकॉज सो मेनी वेस्ट, सम जपा के इम्पोर्टेंस देते हैं, सम गुरु तपा के बारे में देते हैं, तपस्या करवाते हैं। कुछ गुरु प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बहुत कठिन जो होता है वो साधना करवाते हैं। मतलब शिष्य का कैपेसिटी का हिसाब से काम, जैसा ऑर्गेनाइजेशन में आपका हिसाब से उनको फोटोग्राफर मिला, आपका इंटरव्यू कुछ मिला, वो हिसाब से काम चलते रहे। अब समझ में आया गुरुजी कि आपके जो शिष्य हैं वो क्यों वायरल हैं। वायरल ऐसा कुछ नहीं है, ही इज वर्किंग हार्ड ऑन वट एवर इट इज, ही इज वेल क्वालिफाइड, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स नो। क्वालिफिकेशन भी माँ सरस्वती का कृपा है। सो क्या होता है, वही चीज़ को थोड़ा बड़े एंगल से देख सकता है वो। he can bring things into conceptual level and create diagrams, and you can make it understand. The advantage of concept is, if it is at a normal level, जो आपको 10 पेज लगेंगे कोई चीज़ लिखने में, वो अगर कॉन्सेप्ट लेवल में लेके आ गया तो एक छोटा सा फार्मूला टाइप 4 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। मगर उसमें एक डिसएडवांटेज है, वो जो समझ सकता है कॉन्सेप्ट, जो नहीं समझ सकता है उसके लिए 10 पेज लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सोमेश्वर पुरी जी महाराज, जिनसे हमने बातचीत की। और जी, जूना अखाड़ा 16 मणि जी, और श्री 108 हीरापुरी महाराज जी जो गुरु जी है, उनका तंबू, उनका शिष्य है, उनका एरिया से, बिकॉज उनका गुरु जी का नाम आना चाहिए जो भी हम करते हैं। तो हमने बातचीत की सोमेश्वर पुरी महाराज जी से, जिनके बारे में आपने सुना। आप बैंक मैनेजर थे, लेकिन उसके बाद अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे करके संन्यास की दीक्षा ले ली थी।